جی ناظرین السلام علیکم، میں سرفراز صفی اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت میں ہوں پرانی انارکلی فوڈ سٹریٹ میں۔ آپ اس کی تاریخ سے تو واقف ہی ہوں گے۔ یہ لاہور کی بڑی معروف جگہ ہے، بڑا معروف مقام ہے، اور یہاں رات کے وقت دن ہوتا ہے، مطلب نائٹ برڈز جو ہے نا اس پہ ڈیرا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو دکھاؤں، میرے پیچھے ہے وہ بڑی تاریخی جگہ ہے، یہ اسے کہتے ہیں یاسین ٹی سٹال۔ کبھی یہ بوٹا ٹی سٹال ہوتا تھا، یہ تارک کی ٹکیاں لکھا ہوا ہے نا، اور یہ یاسین کی شاپ ہے، یاسین ٹی سٹال۔ یہ بڑی ایک معروف شاپ ہے بوٹا ٹی سٹال پہ۔ ہمارے لاہور کا کوئی ایسا ادیب، کوئی ایسا شاعر، کوئی ایسا ترقی پسند اور کوئی ایسا سیاسی ایکٹیوسٹ نہیں ہوگا جس نے یہاں آ کر چائے نہیں پی ہوئی۔ اور یہ میں آپ کو ایک اور بڑی ہسٹوریکل جگہ دکھا رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں گے اس وقت لاہور میں وہی ہے اسموک بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ تاریخی ایک جگہ ہے جس کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے عقب میں ہے یاسر بروسٹ۔ یہ یاسر بروسٹ ہے، اور اس کے ساتھ یہ آپ خالی پلاٹ دیکھ رہے ہیں نا، میں آپ کو اس خالی پلاٹ کے پاس لے کے جا رہا ہوں، بالکل ہی پاس سے آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ دیکھیے، یہ وہ جگہ ہے جو کبھی، یہ اب خالی پلاٹ ہے، اور اس خالی پلاٹ کی ایک تاریخ ہے۔ یہ یاسر بروسٹ کے ساتھ یہ خالی پلاٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ وہ تاریخ یہ ہے کہ یہاں کبھی باری علیگ صاحب کا گھر ہوتا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ اس وقت یہ مرغی خانہ سا بنا ہوا ہے۔ باری علیگ صاحب کون تھے؟ باری علیگ صاحب وہ تھے، یہ خالی پلاٹ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جو مرغی خانہ صاحب کو نظر آ رہے ہیں۔ وہ بہت بڑے کمیونسٹ تھے اور ترقی پسند تحریک کے روح رواں جنہوں نے بنیاد رکھی تھی، وہ یہ باری علیگ تھے۔ اور اس مقام پر، اس جگہ پہ سعادت حسن منٹو، فیض احمد فیض، ساحر لدھیانوی اور بڑے بڑے جو نام ہیں ہمارے لاہور کے ترقی پسند شاعروں، ادیبوں اور سیاسی ورکرز کے، وہ یہاں آ کے بیٹھتے تھے۔ اور فیض کے ساتھ، حمید اختر صاحب کے ساتھ یہ ایک ملاقاتوں کا سلسلہ ہوتا تھا۔ امرتا پریتم جو پھر بعد میں انڈیا چلی گئی، امرتا پریتم کا بھی یہ مسکن ہوتا تھا۔ وہ رہنے والی تو گجرانوالہ کی تھی، اس کی شادی لاہور میں ہوئی۔ لاہور میں نئی انارکلی، یہ تو پرانی انارکلی ہے نا، لاہور میں نئی انارکلی میں اس کے ہسبینڈ کی شاپ تھی کپڑے کی، کپڑے کا تاجر تھا، لیکن وہ ساحر لدھیانوی کے عشق میں مبتلا تھی۔ وہ خاتون، وہ سائیکل چلاتی ہوتی تھی بھائی مار روڈ پہ نا، تو وہ ساحر لدھیانوی سے ملنے کے لیے اسی جگہ پر، باری علیگ صاحب کے اسی مسکن پر وہ آتی ہوتی تھی۔ اور حمید اختر صاحب کے ساتھ ساحر لدھیانوی صاحب گزرتے نہیں ہوتے تھے نیو انارکلی سے، دونوں نے ادھر سے آنا ہوتا تھا، اور دونوں نے پرانی انارکلی میں آ کے ناشتہ کرنا ہوتا تھا، تو وہ یہاں سے گزرتے نہیں ہوتے تھے نیو انارکلی میں سے کہ او یار امرتا دا بندہ ویکھ لے گا۔ اس مقام پر ہم اس لیے ہیں کہ میرا من چاہا کہ آج میں آپ کی بات کرواؤں ہمارے لاہور کے ترقی پسند ادیبوں، شاعروں سے، جو ذوالفقار علی بھٹو کیس کو روزانہ یہاں ڈسکس کرتے ہیں، اور میں آپ کو ان کے پاس لے کر جاؤں گا۔ یہاں سے بالکل ہی ساتھ مار روڈ ہے، مار روڈ کے اوپر ہی ہے نا یہ انارکلی، اور وہاں سے بالکل چند قدموں کے فاصلے پر پاک ٹی ہاؤس ہے۔ پاک ٹی ہاؤس میں بدھ کے روز، آج بدھ ہے، انجمن ترقی پسند مصنفین کا اجلاس ہوتا ہے، تنقیدی سیشن ہوتا ہے، اور سنڈے کو، اتوار کے روز حلقہ ارباب ذوق کا اجلاس ہوتا ہے۔ تو وہاں سے سارے ادیب، شاعر اٹھ کر پاک ٹی ہاؤس سے نکل کر پرانی انارکلی میں آ جاتے ہیں، اور یہاں آ کر فوڈ سٹریٹ میں کھانا وانا یہ وہ اور بیٹھک ہوتی ہے، کیونکہ 10 بجے تک پاک ٹی ہاؤس ہوتا ہے، اس کے بعد بند ہو جاتا ہے۔ یہاں تھڑوں پہ
बैठने की पुरानी रवायत है अदीबों शायरों की। तो मैंने सोचा आज इनसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। चलते हैं हमारे मुल्क के आज के दानिश्वरों की तरफ, आज के शोरा की तरफ। स्पेशली तरक्की पसंद है ये सारे, और लेफ़्ट का जो धड़ा है ना अदब की दुनिया में, ये वो लोग हैं, उनकी तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। आइए मेरे साथ। इस वक्त इसी पुरानी अनारकली फूड स्ट्रीट में मेरे साथ बैठे हुए हैं, तशरीफ़ फरमा हैं हमारे मुल्क के बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े मुहक्किक, बड़े शायर हैं और बड़े सियासी एक्टिविस्ट हैं। और इनकी सियासत पूरा लाहौर ही नहीं, पूरा पाकिस्तान जानता है, समझता है। इनसे हम पूछेंगे कि ये जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस है, इसके हवाले से जो एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है कि वो जो मर गया है भुट्टो, 50 साल बाद उसका केस खोल लिया है, और जो आज का भुट्टो है इमरान खान, ये कहा जा रहा है ना कि इमरान खान आज का भुट्टो है, उसके बारे में अदालतें खामोश हैं या उससे इंतकामी मतलब उनके साथ, इमरान खान के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ख्वाजा साहब से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। सफ़ी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत? मैं ठीक हूँ। तो क्वेश्चन वही है जो मैंने जी जी, आप क्या कहते हैं? इसमें पहली बात तो यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो कत्ल केस है वो पाकिस्तान की अदालती तारीख़ और पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के माथे पर एक बदनुमा दाग है, जिससे धोए बगैर वो आगे चल ही नहीं सकते। मैं जस्टिस फायज़ी साहब से बहुत उम्मीद रखता हूँ कि वो इंशाल्लाह ताला इंसाफ के तकाज़े पूरे करेंगे कि सच जो है वो 100 साल बाद, 50 साल बाद, 200 साल बाद जब भी सामने आए वो सच ही रहता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल को अदालती कत्ल जो है वो तस्लीम भी किया गया और बाद अज़ां कहा भी गया। मगर यहाँ मैं एक और रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा काजी फायज़ी साहब से कि जस्टिस साहब, जिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आप बेगुनाह करार दे देंगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो बेगुनाह था, आप उसे अगर बेगुनाह करार दे देंगे तो इस पे आप कोई उस पर एहसान नहीं करेंगे, या पाकिस्तान की तारीख़ पे या अपनी अदालती तारीख़ पे एहसान नहीं करेंगे। ये एहसान आपका अपनी अदालती तारीख़ पे ज़रूर होगा। हाँ, अगर आपने इस रास्ते को रोकना है, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम जो है उसे कुछ सुकून मिले, और आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात को मुस्तक़बिल में रोका जाए, तो उसका ये हल है कि भुट्टो साहब को उसी सूरत में जब आप बेगुनाह डिक्लेयर करें, जब आप उन्हें इनोसेंट डिक्लेयर करें, जब उन्हें केस से बरियत मिले, जब वो एक्विट हों, तो उसके साथ फिर उनके कातलों का तयन भी लाजमी करें। क्योंकि वो बात की बात है, वो जो मर चुके हैं, जो उनका जो मरे हुए लोग होते हैं, उनकी जज़ा और सज़ा जो होती है वो अलामती ही होती है। मगर ये है कि ये आपको अपनी तारीख़ दुरुस्त करना होगी, इसके बगैर कोई जो है हम आगे चल नहीं सकते। और जहाँ तक सफ़ी साहब आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कंपेयर किया इमरान खान के साथ, तो भुट्टो साहब को तो हमने सिर्फ पढ़ा है, किताबों में पढ़ा, हमने उनसे मिले नहीं हैं। मगर इमरान खान के साथ तो मैंने ज़िंदगी गुजारी है, 26 साल गुजारे हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड बोथ द लीडर्स। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपने सगे बेटों के साथ उस वक़्त कता ताल्लुक़ कर लिया जब उन्होंने अल जुल्फ़िकार बनाई, यानी कि वो पॉलिटिक्स में रियासती अदारों पर हमला या पाकिस्तान की रियासत को नुकसान पहुँचाने के हवाले से बदतरीन मुखालिफ थे, और उन्होंने अपने दोनों बेटों से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। और फिर बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल के बाद जो भी हुआ, त्यारा हुआ या दूसरे तीसरे केस हुए, चौधरी ज़फ़र का कत्ल हुआ, वो अलहदा मामला था जुल्फ़िकार के। मगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक पॉलिटिकल आदमी था, पाकिस्तान का लॉयल आदमी था, और पाकिस्तान का एक ऐसा हीरो था जो आज तकरीबन 40 साल 45 साल गुजरने के बावजूद भी, अपनी शहादत के बाद भी, बल्कि मैं तो शहीद का लफ्ज़ भी भुट्टो साहब के लिए इस्तेमाल नहीं करता, और ना ही कभी मैंने अपने कॉलमों में लिखा है। मैंने भुट्टो साहब को हमेशा मकतूल लिखा है, क्योंकि जब हम शहीद लिखते हैं ना, तो इससे जो कातिल है उसके बारे में ये गुमान होता है कि उसने तो बड़ा नेक काम किया कि किसी को शहादत के मर्तबे पे फाइज कर दिया है। मैं भुट्टो साहब को मकतूल इसीलिए कहता हूँ ताकि ये पता चले कि इन्हें कत्ल किया गया था। तो जहाँ तक इमरान खान की बात है, तो इमरान खान साहब को तमाम तर अकल फराहम करने के बावजूद, मना करने के बावजूद,
انہیں کہ ریاستی اداروں پر حملے جو ہیں یہ زیب نہیں دیتے، یہ غلط ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے کسی ریاستی ادارے پر حملہ نہیں کیا ہوا تھا، بلکہ ایک ریاستی ادارے نے بھٹو پر حملہ کیا تھا، عوامی لیڈر پر حملہ کیا تھا۔ یہاں پر ایک عوامی لیڈر نے پرووک کیا، مشتعل کیا ایک ہجوم کو، نوجوانوں کو ورغلایا ان کو، اور ان سے وہ کام کروا دیا جو اس سے پہلے طالبان کر چکے تھے اور مودی کی خواہش تھی، اور ان کا اب بھی نیریٹو وہی ہے جو کہ ہمارے مخالفین کا یا پاکستان دشمن قوتوں کا ہے۔ تو میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے ونس اگین یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھٹو کا بری ہونا حق ہے اور یہ حق اسے ملنا چاہیے، مگر آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ پر یہ فرض عائد ہوتا ہے، اور آپ دنیا میں اور آخرت میں اس کے بارے میں جواب دہ ہوں گے کہ اگر آپ اس کیس کو آپ نے کھول ہی لیا ہے تو جب آپ بھٹو صاحب کو بری کریں تو اس کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کے قاتلوں کا تعین کر کے ان کے معاملات بھی کورٹ میں لے کے جائیں اور انہیں سزائیں دیں۔ ڈیفینیٹلی وہ علامتی سزائیں ہوں گی، ان کی قبروں کو سزائیں دیں تاکہ یہ تاریخ میں بطور مجرم لکھے جائیں۔ جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو 45 سال آپ نے مجرم بنائے رکھا، تو اس طرح آنے والی تاریخ اور آنے والی نسل ان کو ہیرو نہ سمجھے بلکہ ان کو قاتل سمجھے، اور قاتل جو ہے وہ دنیا کے کسی معاشرے میں قابل عزت نہیں ہوتا۔ تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ مت دیکھیے گا کہ وہ جج کون تھے جنہوں نے پھانسی دی سپریم کورٹ میں، یہ نہ دیکھیے گا کہ ہائی کورٹ میں وہ جج کون تھے جنہوں نے وہ پھانسی دی، اور یہ بھی مت دیکھیے گا کہ ان کو احکامات جاری کرنے والی قوتیں کون کون سی تھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سلامت رہے خواجہ صاحب، آپ نے بڑی اہم باتیں کی ہیں، اور ناظرین میں آپ کو ایک بات بتا دوں، خواجہ صاحب، خواجہ جمشید امام صاحب جہاں اتنے بڑے شاعر ہیں، اتنے بڑے رائٹر ہیں اور اتنے بڑے محقق اور مفکر ہیں، وہاں میں نے پہلے بھی تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایک سیاسی ایکٹیوسٹ ہیں، بڑے سیاسی ایکٹیوسٹ، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بعد ازاں پی ٹی آئی کے لیے سیاست کی اور بے شمار سیاست کی، اس کے بانی ارکان میں شامل رہے، اور جب عروج پہ تھا عمران خان کی حکومت عروج پر تھی، حالانکہ یہ پی ٹی آئی کی سینٹرل کمیٹی کے ایگزیکٹو ممبر تھے، انہوں نے تب عمران خان کو چھوڑا اور ان کی پالیسیز کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے، اختلاف کرتے ہوئے چھوڑا۔ میرے ساتھ کچھ اور دوست بھی ہیں، لیکن ایک خواجہ صاحب نے جو بات کی ہے بڑی اہم ہے کہ یہ علامتی پھانسیاں ہوں گی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، وہ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ گنگے نو نہ مارو، گنگے دی ماں نو مارو، وہ احمد رضا قصوری جس کے منہ پر سیاہی پھینکی گئی تھی، سیاہی کے دھبے ابھی تک دھلے نہیں ہیں اس کے منہ سے، وہ آج بھی زندہ ہے۔ یہ وہی بندہ ہے جس نے ایف آئی آر کٹوائی تھی، زبردستی کٹوائی تھی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کہ میرے باپ کا قاتل ذوالفقار علی بھٹو ہے، وہ تو ابھی زندہ ہے نا، گنگے دی ماں زندہ ہے اجے، اس نے گنگے مطلب پیدا کرتی ہی رہنا ہے، جو گنگے کی مائیں ہوتی ہیں وہ گنگے ہی پیدا کرتی ہیں، اس کا کیا کرنا ہے یہ بھی قاضی صاحب کو سوچنا ہوگا۔ میرے ساتھ ہیں ہمارے ایک لیفٹ کے بڑے ایک شاعر، لیفٹ کے بڑے شاعر ہیں، ترقی پسند تحریک کے روح رواں ہے ڈاکٹر طاہر شبیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کا جو ان کی فیملی ہے اس کا تعلق ہمیشہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا، ان کے بھائی پیپلز پارٹی کے ایم این اے رہے، اور ان کے والد صاحب بھی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ایم پی اے رہے۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے جو کیس کھلا ہے اس پر۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو کیس کھلا ہے ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کا، عدالتی قتل کا، اس کا کیا فیصلہ آپ سمجھتے ہوگا؟ آپ کی فیملی کا بڑا تعلق رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور آپ ایک بڑے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، ایک بڑے شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ، اور ترقی پسند ہیں آپ، اور لیفٹ کی ساری موومنٹ میں آپ کا بڑا حصہ ہے، کیا دیکھ رہے ہیں اس سارے معاملے کو؟ ہمارا جو نظریہ ہے ترقی پسندوں کا، ہم دنیا دو گروپوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ضیاء ابھی تک مرا نہیں ہے، ہو سکے تو ضیاء کو مارو، اور دوسرے وہ ہیں کہ جو زندہ ہے بھٹو زندہ کا نعرہ لگاتے ہیں۔ جو ضیاء ابھی تک مرا نہیں ہے یا جو ضیاء کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ اولڈ قدامت پرست ہیں، جو عقائد پرست، جو یہ سماج کو جوں کا توں رکھنا چاہتے ہیں، اور مذہبی قوتیں کے سپورٹر ہیں، عامریت کے حمایت یافتہ ہیں، طالبان کے حمایت یافتہ ہیں۔
और दूसरी तरफ जो जिंदा है भुट्टो जिंदा है का नारा लगाते हैं, उनकी सोच यही है कि इस मुआशरे में तरक्की होनी चाहिए, यहाँ इनकलाब आना चाहिए और लोगों औरतों की तालीम आम होनी चाहिए। तो हम इस बात की हिमायत करते हैं। इस लिहाज से ये असल में जो भुट्टो का कत्ल था वो एक सिस्टम का कत्ल था, जो मुखालिफ सिस्टम था, जो वो इस मुल्क को जूं का तू रखना चाहता था, उन्होंने भुट्टो जो या तरक्की याफ्ता कुव्वत का नुमाइंदा भुट्टो था उसको कत्ल कराया था, और वो एक नाजायज कत्ल था। उसकी पीछे दो देश के मुल्ला खड़े थे, सारे मजहब पसंद खड़े थे, और अमेरिका सबसे बड़ी साम्राज्य ताकत अमेरिका भी उसमें शामिल था। वो भुट्टो को जैसे सोच वाले लोगों को पूरी दुनिया में कहीं भी कबूल नहीं करता। उस दौर में भुट्टो ने और मुल्कों में भी जो लोगों का कत्लेआम अमेरिका ने कत्ल कराया था, और कत्लेआम ये अभी तक उनका जारी है। उनकी ताकत, उनकी कोशिश यही होती है कोई साम्राज्य मुखालिफ कुव्वतें जो आगे ना बढ़ सकें। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं जो मुतवक्किया फैसला है इस केस का, वो क्या आने वाला है? जस्टिस फाइज ईसा ने एक बड़ा कदम उठाया है, और इस पे क्या फैसला आ सकता है? तो फैसला हम यही समझते हैं, अगर ये केस खोला गया तो इसका मकसद है कि भुट्टो को बरी किया जाए। उम्मीद अगर बरी ना करना होता तो फिर सजा तो पहले हुई पड़ी है, और उसी सजा को कायम रखना तो वो तो पहले से मौजूद है। अब हम यही उम्मीद रखते हैं कि जो भुट्टो को नाजायज जो कत्ल किया गया था उससे उसको बरी होना चाहिए। शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ताहिर शबीर की बातें आपने सुनी, और मैंने पहले भी बताया कि ये पीपल्स पार्टी का घराना है। इनके छोटे भाई पीपल्स पार्टी के एमएनए रह चुके हैं, और इनके वालिद साहब पीपल्स पार्टी के टिकट पर एमपीए रह चुके हैं। अब मैं आपकी बात करवाऊंगा, हमारे मुल्क के एक बड़े दानिश्वर हैं, बड़े अफसाना निगार, बड़े मुहक्किक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, और हल्का और बाब ज़ौक़ से लेकर अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन दोनों जगह पर इन्होंने जो काम किया है वो बड़ा ही बेमिसाल है और हमेशा याद रखा जाएगा। और ये जो समरी कोर्ट्स का अदालती मतलब फ़ौजी अदालतें, इनका अभी तो आज की नई नस्ल नाम ही सुन रही है, लेकिन उन्होंने ये समरी कोर्ट भुगते हुए खुद बतौर मुल्ज़िम। इनसे बात करते हैं, मेरे साथ हैं डॉक्टर आलम खान, मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये अदालत का ये फैसला करना कि इसकी समाअत की जाए एक बड़ा कदम है, और ये मस्बत बात है। और इससे आगे भी ये तवक्को की जा सकती है कि अदालत अपना रिकॉर्ड सही कर लेगी, जिससे हमारे इंसाफ की जो रवायत है उसको तौकीर मिलेगी। तो ये ज़रूरत है इस अमर की है कि हम सारे जमहूरियत पसंद लोग या तरक्की पसंद लोग या जो लोग समाजी इंसाफ पर यकीन रखते हैं वो इसकी हमायत करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो ये शोशा छोड़ा जा रहा है कि कल का भुट्टो जो है उसका तो मुकदमा खोल लिया जो मर चुका है, और आज का भुट्टो जेल में बंद कर दिया है, क्या इमरान खान का मुआवजना कंपैरिजन किसी तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया जा सकता है? देखिए, मेरे ख्याल में सियासी किरदार जो है वो सियासी अमल के दौरान तय नहीं होता। जब सियासी किरदार की तकमील हो जाती है तो फिर वो तारीख का हिस्सा बनता है। तो अभी जिसका भी जिक्र दोस्त कर रहे हैं वो एक अमल से गुजर रहे हैं। अगर उस पार्टी के किरदार को ना भी डिस्कस किया जाए तो फिर भी ये अभी अमल जो है वो अभी रास्ते में है। मतलब तारीख तय करेगी, वक्त तय करेगी। हाँ, अभी तारीख का हिस्सा बनना है उसे। वो तारीख के एक तसलसल में चल रहा है, लेकिन ये कंपैरिजन वैसे मेरे ख्याल में इंसाफ पर मबनी नहीं कि भुट्टो से उसका कंपैरिजन किया जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ कंपैरिजन बनता नहीं है। थैंक यू। उनकी ग्रूमिंग और तरक्की है, उनका पर्सनैलिटी लेवल, उनका सियासी किरदार, उनकी सियासी सोच और उनका अमल। तो ये जो दूसरा जिनका मुआवजा किया जा रहा है, नाम लेना ज़रूरी नहीं क्योंकि हम किसी पर ज़ाती तनकीद नहीं करना चाहते, तो ये इनका तो ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए वो आज का भुट्टो कहना ये तो ज़ाहिर है कि ये एक खाम ख्याली है और ये एक नापुख्ता शऊर की अलामत है कि लोग इस तरह से देखते हैं और मुआवजा करते हैं। जी, हमारे साथ हैं इस वक्त आबद हुसैन आबद साहब। मैं आपको इनका तारुफ पूरी तरह से करवा चुका हूँ। हमारे मुल्क का एक बड़ा नाम, एक बड़े शायर, एक तरक्की पसंद तहरीक के इस वक्त के
मतलब अगर तरक्की पसंद तहरीक जिंदा है तो आबिद हुसैन आबिद और इनके दोस्तों की वजह से जिंदा है। इनसे हम बात करते हैं जिस तरह से ये पूरी जहानत इनकी टपकती है इनकी शायरी में और इनकी गुफ्तगू में, ज़ाहिर है ये हमें कुछ यूनिक बताएंगे इस केस के हवाले से। डॉक्टर आबिद साहब, ये जो केस खुला है जी जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के हवाले से, हाँ जी। इस पर आप क्या कहेंगे? और ये जो कंपैरिजन है इमरान खान के हवाले से किया जा रहा है कि कल के भुट्टो का केस खोल लिया और आज के भुट्टो के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं और वो जेल में है और ये वो, इस सब मामले पे क्या कहेंगे? और क्या बरी हो जाएगा जुल्फ़कार अली भुट्टो 50 साल बाद, बेगुनाह हो जाएगा, या ये भी मिट्टी झाड़ेगी, मतलब गोंगलुओं पर से मिट्टी झाड़ेगी ये अदालत? अच्छा देखें, फ़र्ज़ किया कि बरी कर दिया, उन्हें बरी कर देते हैं, कहते हैं कि ठीक है जुल्फ़कार अली भुट्टो को जो है ना बरी किया जाता है, तो उसका जो सज़ा देने वाले हैं क्या उन्हें सज़ा भी दी जाएगी? मिसाल के तौर पर जैसे अभी बात हो रही है कि बाजवा ने जनरल बाजवा ने और फैज़ हमीद ने ये इमरान के लिए ये सारा कुछ किया, ये नवाज शरीफ की गवर्नमेंट टैपल की और सारा कुछ ये जोड़ तोड़ उसने किया, तो उन्हें भी कोई सज़ा देने की कोई बात नहीं कर रहा। नून लीग बाजवे की सपोर्ट में खड़ी है और पीटीआई फैज़ हमीद के सपोर्ट में खड़ी है। तो जब तक सज़ा नहीं दी जाएगी तो ऐसे फैसलों का कोई फ़ायदा नहीं है। मसलन जुल्फ़कार अली भुट्टो का पूरा ख़ानदान ही बर्बाद हो गया, 2 लड़के मारे गए, बेटी मारी गई, वो खुद मारे गए, तो उन्हें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ कि ये है कि अगर ऐसी मिसालें अगर आपने बनानी है कि आइंदा मुस्तकबिल में कोई जज जो है इस तरह का बलंडर ना करें, इस तरह की ज़्यादती किसी के साथ ना करें, तो ऐसे जर्नलों और जजों को सज़ाएं देनी पड़ेंगी। जैसी सज़ा जस्टिस वकार सेठ ने परवेज़ मुशर्रफ के लिए तजवीज़ की थी, वो वकार सेठ को ही मंदिर से हटा दिया गया। तो अब फर्ज की अब ये बहस हो रही है ना कि जी केस ओपन हो गया, 12 साल बाद उन्होंने खोल दिया, ये मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं काजी साहब, तो क्या काजी साहब में इतनी जुर्रत है, काजी साहब का अदारा उनके साथ खड़ा होगा कि उन जजों को जिन्होंने ये गलत सज़ाएं दी थी, खा वो नवाज शरीफ को हो, खा वो जुल्फ़कार अली भुट्टो की हो, क्या उन्हें सज़ा दे पाएंगे? क्या काजी साहब और काजी साहब की अदलिया के बाकी जज जो हैं ये उनको सज़ा देंगे? फैज़ हमीद को या बाजवे को? इमरान तो पकड़ लिया, अंदर है, ठीक है। अच्छा, अब मैं तो ये कहता हूँ कि ये कंपैरिजन ही गलत है। कहाँ भुट्टो, कहाँ इमरान खान, कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है कि आप लाके खड़ा कर दें जुल्फ़कार अली भुट्टो के सामने कि जी ये जनाब अपना इमरान खान है तो उससे ज़्यादती हो रही है। भी उसने इतने ब्लंडर किए हैं, इतने ब्लंडर किए हैं। भुट्टो ने कौन सा ब्लंडर किया था? क्या था उसने जिसकी बुनियाद पर उसे अमेरिकन सऊदीया, अमेरिकन CIA और आपकी फ़ौज ने मिलके मारा है भुट्टो को, अदलिया के साथ में इनके साथ मिलके मारा है। तो ऐसा क्या अमेरिका को ख़तरा था इससे, इमरान खान से? क्या ये फ़ौज के ख़िलाफ़ था? फ़ौज के ख़िलाफ़ तो वो अब भी नहीं है। वो तो कहता है मेरी बात कराओ, मुझसे कोई बात नहीं करता। कभी कहता था कि जी मुझसे हाफ़िज़ साहब से मेरी बात करा दी जाए, मुझे साथ बिठाया जाए तो मामला दुरुस्त हो जाएंगे। वो तो फ़ौज ने बनाया, एक लीडर है जिसको फ़ौज ने बनाया, एक लीडर है जो फ़ौज के ख़िलाफ़ सियासत करके लीडर बना अयूब के ज़माने में। तो दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता। अब साइफर का जो केस है सीधा केस है, अल कादर ट्रस्ट का सीधा केस है, तीसरा केस उस पर फॉरेन फंडिंग का केस है। ये बच ही नहीं सकता इन केसों में। मतलब तोशे खाने और ये वो सब कुछ है। जुल्फ़कार अली भुट्टो के तो पूरे उनकी ज़ात पर कोई इस तरह का दाग नहीं, ऐसा दाग नहीं है कि उसने कोई सरकारी खजाने से गबन किया हो, उसने कोई करप्शन की हो, उसने इस तरह का साइफर के मामले में मुल्की सालमियत से वो खेला हो। भुट्टो के क्रेडिट पे तो और तरह की चीज़ें हैं। उन्होंने आइन बनाया है, मुल्क के अदारे बनाए हैं, यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं, कॉलेज बनाए हैं, मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, आर्ट काउंसिलें बनाई हैं, बेशुमार काम है जुल्फ़कार अली भुट्टो के। इसने किया क्या है? ये जिसको मिलाया जा रहा है भुट्टो के साथ, इसने तो कुछ भी नहीं किया, इसने तो बेड़ा गर्क किया है। इसने तो आपका स्टेट बैंक जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है किसी भी मुल्क की फाइनेंस के हवाले से, इसने उठा के उसे कर दिया है ऑटोनोमस।
ऑटोनोमस बॉडी में उसे ले गए हैं, हुकूमती दायरा इख्तियार से बाहर ले गए हैं। ये किया है, ये खिदमत किसकी की है? IMF की है खिदमत, इससे करवाई है, जिन्होंने करवाई है सबको पता है। तो इसे इसमें इतनी अकल नहीं थी कि स्टेट बैंक जो है उसकी किसी मुल्क में उसकी हैसियत क्या होती है। तो ये अच्छा अब सब आप क्या समझते हैं, क्या मुतवक्का फैसला क्या होगा? क्या जो मौलवी मुश्ताक है उसको कब्र से निकाल कर फांसी दिया जाएगा? वो ज़ियाउल हक जिसकी सवा राख भी नहीं बची, जो पता नहीं वहाँ क्या दफन किया है फैसल टाउन में, फैसल मस्जिद में मिसाल है कि वो उन्होंने कब्र से निकाल के जर्नल को सजा दी थी। असल में ये अलामती सजा होगी। ज़ाहिर है एक की तो जबड़ा पता नहीं क्या है, क्या राख है, क्या नहीं है, वह मर खप गए, अब तो कब्रों में उनके हड्डियां भी नहीं होंगी। तो ये अलामती सजाएं होती हैं कि वो मिसाल बनाई जाती है कि ताकि कोई आइंदा ऐसी हरकत ना करे, कोई जर्नैल या कोई जज। मैं फिर कहता हूं जब तक ये अभी दे लें, अब तो जिंदा हैं वो जिन्होंने हाल ही में सियासत की है। बाजवा जिंदा है, फैज हमीद जिंदा है, निसार साकब जिंदा है, उसके साथी जज जाजर हसन जिंदा है, बाकी जज जिंदा है, मुज़ाहिर नकवी जिंदा है। दे सजाएं इन्हें कि ये आइन और कानून से क्यों खिलवाड़ करते हैं, क्यों किसी के कहने पे फैसले देते हैं इस तरह के। भुट्टो केस का एक बड़ा जो मुद्दई था, इसका असल मुद्दई वो अहमद रजा कसूरी आज भी जिंदा है। क्या तवक्को की जा सकती है कि हमारी अदलिया, हमारी सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस फाइज ईसा की ये सुप्रीम कोर्ट, उसका बेंच अहमद रजा कसूरी जो कि इस बुराई की जड़ तो असल में वही है ना कि केस उसने बनवाया और उस केस को बाद में ज़ियाउल हक ने यूज़ किया। आप क्या समझते हैं कि अहमद रजा कसूरी के लिए क्या सज़ा हो सकती है? नहीं, उसे बुलाएं, उसे अदालत उसे बुलाए, उसे सुने और सजा दे। लेकिन ये देंगे नहीं। ये असल में ये जो नवाज शरीफ को 2 दफा इन अदालतों ने रिलीफ दिया है, बड़ा रिलीफ। वो 13 साजिश केस में जो बना था मुशर्रफ के ज़माने में, तो वो भी आके 8 साल बाद, उसकी 5 साल बाद सारी सजाएं माफ़ कर दी इन्होंने। अब दूसरी दफ़ा जो सजा दी है इन्होंने, उसमें भी उसे क्लियर कर दिया। अदालतों का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो नवाज शरीफ है, तो उसको अब बैलेंस करने के लिए भुट्टो का केस रीओपन करके हम तो ये समझते हैं कि बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है ताकि पैरेलल ये आवाज़ें ना आए, जैसे पीपल्स पार्टी के लोग, जैसे जरदारी या बाकी लोग जो हैं वो डोमिसाइल की बात करते हैं कि हमारे पास सिंध का डोमिसाइल है, पंजाब का नहीं है। तो वो बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर जब तक सजाएं नहीं देंगे ये अहमद रजा कसूरी को बुलाए अदालत में, सुने उसे कि फेक मुकदमा उसने बनाया और जिस तरीके से सजाएं दी गई, अलामती सजाएं दें उन जजों को, जनरल ज़िया को अलामती सजा दें।